everyone present here. Firstly, I am overwhelmed with all the recorders sitting here. It's a great pleasure to be here. And also the Indian Book of Records to give me such platform and such recognition. When I was a very young girl, basically when I was 7 years old, I started writing. And when I turned 12, I became a published writer for the first time. And at the age of 15, I wrote my own first poetry book. And I never actually got that much of recognition until now, and that is thanks to the India Book of Records. A big applause for it. And I also like to thank my parents who supported me throughout the process. Okay, well done. So I would like to ask Khushnuma to please tell something about the book. You can stand there. I wanted to recite one of the poems that actually is inspired by the surroundings, the rumors, the people, the self, and everything combined together. It is quoted, "Yet we are shaped by what other people see us as, aren't we? I wish when seed drowns the entire city that once flown, I get to see the water above the moss and wish to be the best among forlorn. Thy speak well of me and my shore, of all the beaches I created near shore. I wish that's what the people told, whenever history was stored and molded. I wish people said the truth of once flown. After all, thy speaks well not anymore, and grow hatred and misery among poor. Pour water such that it made poison taste adore, and make brothers fight for a mere throne. After all, the power mattered more. Blood isn't thicker if you didn't bore. Wow. You might have flesh and a skin that glows, but the dead love at thy core made you what the people told." Thank you. Motivation sometimes comes from within and sometimes from the outside world. I don't say that it actually motivated me. The lack of words, the thirst of expressing the love of life or love for life is what motivated me. मेरे साथ अभी जो रिकॉर्ड होल्डर हैं, इनका नाम सुन के ही आपके मन में भी खुशी दिखने लग जाएगी. ये नाम है खुशनुमा सनोबर. अच्छा खुशनुमा, अपने रिकॉर्ड के बारे में आप मुझे कुछ बताइए. क्या रिकॉर्ड था और कहाँ से आया ये मोटिवेशन कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है? किसने कहाँ सुना आपने? सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कहाँ से मोटिवेशन आया, तब रिकॉर्ड पे जाते हैं. हम जब 7 साल के थे, when I was 7 years old, I started writing stories, and धीरे धीरे वो अनपब्लिश्ड स्टोरीज, धीरे धीरे वो चीज़ें ना क्या होने लगी कि एक पैशन बन गया, एक ज़रिया बन गया दिन पार करने का. और फिर क्या हुआ कि जब मैं 12 साल की हुई, 12 साल के ऑफिशियली मैंने एक पब्लिश राइटर में बन गई. एंड उसके बाद मैं 15 साल में मैं खुद का एक किताब लिखी, जिसके लिए मुझे मैं अप्रिशिएट किया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा कि आपने किताब लिखा है. सेल्फ पब्लिश मैंने किया था. मैंने अपने नॉन नेटिव लैंग्वेज में किया था, मैंने इंग्लिश में किया था. पोइट्री बुक था. एंड दैट इज़ ऑल आई हैव टू से. उस बुक में क्या सारी चीज़ें थी? वो एक पोइट्री बुक था. उसमें हर एक इमोशंस जो मैं फ़ील कर सकती हूँ, बिकॉज होता है ना कि टीनेज लाइफ में थोड़ा इमोशंस एट पीक पहुँच जाता है. और उसको एक्सप्रेस करना कोई लोग पेंटिंग से करते हैं, तो मैंने सोचा लिख के करते हैं. कोई पोइट्री याद है आपको अपनी लिखी हुई? मैंने मैं बुक लाई हूँ. मैं एक पोइट्री सुनाती हूँ मैं आपको. एक पोइट्री का इंस्पिरेशन पता नहीं मुझे कहाँ से आया, पर ये शायद एक बचपना को पाने या चाहने के लिए हुआ था. Humble thoughts were brought in the minds of utter loss. We grow and we learn to grow. We were kids from long ago. We are what we never were. In the name of God and goodness, we are the hope and love of the city's abandoned doves who fly to the nearest hut. We are young to raise the world. We miss some old words, some old golden days of us.
even though we might get hurt, we are kids in the truest form of hurt. Wow, that's so cool. ओके सो मोटिवेशन का तो पता चला, अब रिकॉर्ड का भी पता चल गया. इस रिकॉर्ड के बाद यही रिकॉर्ड था या कोई और रिकॉर्ड था? एक्चुअली यही रिकॉर्ड था. ओके सो इस रिकॉर्ड के बाद कोई चेंजेस आपने फील किए? मतलब जैसा आपने बताया मुझे 7 ईयर्स से आप लिख रहे हो एंड 15 ईयर्स पे ये आके आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो, दिखा सकते हो लोगों को, अपने पोइट्रीज़ को बता सकते हो. तो चेंजेस क्या फील किया आपने अपनी लाइफ में, या अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में कुछ? कह सकते हैं एक रिकग्निशन मिला. सबसे पहली बात, लोग पहले क्या होता था कि लोग पोइट्री सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि पता नहीं क्यों ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक रील वीडियो है, पोइट्री कौन सुनेगा. तो पर अब क्या होता है ना कि अब मेरे कुछ दोस्त आते हैं मेरे पास, पहले भी थोड़े थोड़े आते थे, और वो लोग मेरे से पोइट्री सुनते हैं. लाइक तुम कुछ लिखो हम सुनेंगे, और उसी वक्त हम लिख के कुछ सुनाते हैं उनको, या फिर मेरे बारे में कुछ पोइट्री लिखो हम सुनेंगे. और जैसे एक कम्युनिटी में एक, क्योंकि हम बहुत ही पीछे तरफ से आए हैं बेसिकली, हम लोग के कम्युनिटी में इतने पोएट्स नहीं कहेंगे, इतने कोई लिटरेरी लोग नहीं है. इससे क्या हुआ कि जब हम सामने आए तो हमको बहुत ज़्यादा वो मिला, क्या बोलते हैं, रिकग्निशन, एप्रिशिएशन. और लोगों के द्वारा दे स्टार्टेड to appreciate what I had actually have. They started to recognize me. They started to like mingle with me. I was a very introverted kid, honestly, and पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा है आपके पोइट्री को लेकर? पेरेंट्स सपोर्ट किए? they have always supported me, to be honest. Parents were the biggest. Basically उन्हीं की वजह से हम यहाँ आए हैं, कह सकते हैं आप. ऐसा तो लोग कहते नहीं है, बट हाँ, मैंने आई गेस मैं यहाँ बैठी भी हूँ तो उन्हीं की वजह से बैठी हूँ. उन्होंने मेरे को इंस्पायर भी किया. मेरे पापा खुद एक लेखक थे बेसिकली. ओके. पर उनका क्या हुआ हम ये कह सकते हैं ये जीन का ही वो है, कमाल. हाँ, पर उनके साथ क्या हुआ कि वो लिख नहीं पाए basically. अच्छा. वो अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए, उनको जॉब करना पड़ गया. और पर इसलिए हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो एक इंस्पिरेशन टू यंग यूथ. बिल्कुल. चलिए खुशनुमा, थैंक यू सो मच. आपका बहुत शुक्रिया.